Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. I apologize for the delay. Well, let's all rally around and let's all worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you. आइए सब मिलके गाएं। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा नशा, दिल जान बनावो वो संग लिया मोहे संग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया. You know, Paul the Apostle, he was in the jail, and basically in the catacomb. If you go, you can find out where they imprisoned Paul the Apostle. Feet in stocks and hand in chains, and they were special category of Roman soldiers who kept a very, very tight vigil and watch around Paul the Apostle. And he knew, because prophetic word was already unleashed on him, that he was going to die, he will be bound. He knew his destiny, he knew his future. You know what Paul says when he writes his final epistles from the last imprisonment that Paul had? He says, Paul the Apostle, a servant of the Lord. Paul the Apostle, a prisoner of the Lord Jesus Christ. He doesn't say, I am the prisoner of Caesar or Nero. He says, I am the prisoner of the Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ, पौलुस लिखता है. और पौलुस की जो कैद है, उसके बाद उसका गला काट दिया जाएगा. और पौलुस कलीसिया को लिखता है, Paul from the prison encourages the church. He says, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Hallelujah. Paul knew the anchor of his hope lies beyond the veil. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. This rejoicing, the command to rejoice is unconditional. It's not connected to your environment or circumstances. Hallelujah. आइए हम यीशु मसीह के नाम में आनंदित हों, प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए. तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं. स्वर्गीय पिता, तेरे वचन को तेरा पवित्र आत्मा खोले.
जब हम तेरे वचन में से सीखते हैं प्रभु, हालेलुया, तेरे वचन के ऊपर मनन करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे वचन को हमारे ऊपर खोले स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई पवन प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि उनकी वाइफ रेखा रानी के लिए हम सभी प्रार्थना करें। रेखा रानी को आपके आगे उठाते हैं, यीशु मसीह तेरा लहू रेखा रानी के ऊपर लगाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उस लड़की के लिए प्रभु जिसके विषय में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है ब्रदर रमन ने। प्रभु उस लड़की को आपके चरणों में देते हैं। लॉर्ड, मे योर हीलिंग अनॉइंटिंग, हीलिंग अंशन फॉल अपॉन दैट गर्ल इन यहोशुआज माइटी नेम। प्रभु हम और प्रार्थना विनतियाँ जो तेरे लोगों ने भेजी हैं सबको तेरे आगे उठाते हैं, तेरा लहू छिड़कते हैं। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा करते हैं। लॉर्ड, सेंड द अनॉइंटिंग ऑफ योर प्रेजेंस, send your very special presence and anointing as we dig deeper on the heavenly courts and as we learn to delve deeper into the realm of prayer and intercession. Father, the protocols that govern praying in the heavenly realm, praying before the heavenly judiciary, praying before the court of the kings, the courtroom of the Father, the Supreme Court, praying in the courtroom of Yahushua HaMashiach, praying in the council of the 70 elders, praying in the divine council of 24 elders, praying before the 7 spirits of God. Father, praying before the divine council that sits on Mount Zion. Hallelujah. Teach us, Father, your wisdom and your understanding, Father. We praise you, we bless you. यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप सबको आशीषित करे। हम कल सीख रहे थे कोर्ट रूम के अंदर प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 2 वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जाएं तो हम पिता को कैसे अप्रोच करें। यीशु मसीह ने सबसे प्राइमरी जो प्रार्थना का मॉड्यूल हमें सिखाया, वो कैसे पिता के अधिकार में जाके प्रार्थना करना है। वो है, आप देखेंगे लूक 11:2, हाउ वी अप्रोच हिम एज फादर इन लूक्स गॉस्पल चैप्टर 11 वर्स नंबर 2, कि हम उसके सन्मुख जाएंगे और उसे पिता की हैसियत से अप्रोच करेंगे। और लूका 11 अध्याय के 5 से 8 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके घर में एक मेहमान आता है और रात के समय आता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए। तो ये व्यक्ति अपने किसी मित्र के पास जाता है और रात को उसका द्वार खटखटा के कहता है कि मेरे घर में एक मित्र आया है और मुझे 3 रोटियां दे। यीशु मसीह इसी चैप्टर में सिखाते हैं कि कैसे जाएंगे मित्र की हैसियत से। हालेलुया। वचन में लिखा वो अवश्य उठेगा और अपने मित्र की ज़रूरत पूरी करेगा। और लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के पहले वचन में, वो हम बाद में मनन करेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि कैसे उसके पास जाना है जज की हैसियत से, कि वो जज है हमारा, पिता की हैसियत से, मित्र की हैसियत से और जज की हैसियत से। ये तीनों ही डिमेंशंस प्रार्थना की यीशु मसीह ने सिखाई हैं। लेकिन अभी मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें और निकालिए दानियल नबी की पुस्तक जल्दी से, बुक ऑफ दानियल नबी की पुस्तक, और उसका आप 7 अध्याय निकालिए। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कोर्ट रूम के अंदर कैसे प्रार्थना करना है, कोर्ट रूम की प्रार्थना के कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कौन से कोर्ट रूम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं वहाँ जाके, अलग अलग कितने कोर्ट रूम्स हैं हेवन में, ये सब प्रभु के वचन से हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे मैं कल आपको बता रहा था
कि प्रार्थना का जो रूप प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट करते हैं, या पूरी बाइबल हिब्राइक पर्सपेक्टिव में प्रार्थना का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना लड़ाई के मैदान में लड़ा जाने वाला संग्राम ही नहीं है। हमने अक्सर वेस्ट पर्सपेक्टिव से यही सीखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हिब्राइक बुक है, हिब्रू लोगों की किताब है। इसे हेलेनिस्टिक पर्सपेक्टिव से डिकोड नहीं किया जा सकता, या वेस्टर्न कल्चरल लेंसेज के थ्रू इसे देख के हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो हिब्राइक पूरे का पूरा जो रेवलेशन है बाइबल का, उसमें प्रेयर इज समथिंग दैट एंगेजेस इन द कोर्ट रूम rather than it's an onslaught in the spiritual battlefield. If you put all the words together in Hebrew that pertain to prayer and all the words that are denoted for prayer in Greek, and even you go for the Vulgate translation and look for the Latin word and also go for the Aramaic text, आप देखेंगे इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में, लातीनी भाषा में, आरामी भाषा में जितने शब्द प्रार्थना के लिए इस्तेमाल हुए, 80% शब्द जो हैं वो अदालत के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। प्रार्थना स्वर्गीय अदालतों में होती है। कोर्ट रूम में इसका बड़ा प्रारूप है और युद्ध के मैदान में इसका छोटा प्रारूप है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक में उसका 7 अध्याय और उसका आप निकालिए 9 वचन से, दानियल 7 के 9 से। देखिए, पढ़ें वचन। एज आई लुक्ड, थ्रोन्स वर सेट इन प्लेस एंड द एंशिएंट ऑफ द डेज टुक हिज सीट। दानियल क्या देख रहा है? स्वर्ग में दर्शन देख रहा है कि स्वर्ग में सिंहासन रखे गए, बहुत से सिंहासन रखे गए, लेकिन एक अद्भुत सिंहासन था जिसके ऊपर कौन बैठा जाके? द एंशिएंट ऑफ डेज, यहोवा पिता, याहुआ, जिसका नाम हाइया अशर हाइया। ही सैट ऑन द मैजेस्टिक इटर्नल थ्रोन। यहोवा महिमा से भरे सिंहासन पे विराजमान हुआ। हिज क्लोथिंग वॉज लाइक वाइट एज स्नो। उसके वस्त्र ऐसे थे, ऐसा प्रकाश था उसके वस्त्रों में जिसे मनुष्य बिहोल्ड नहीं कर सकता। द हेयर ऑफ हिज हेड वॉज वाइट लाइक वूल। बहुत सफ़ेद उसके बाल थे। His throne was flaming with fire and its wheels were all ablaze. ये एक ऐसा सिंहासन है जो व्हील्स के ऊपर बना है। इज़िकियल नबी की पुस्तक से फिर किसी समय हम इसके ऊपर मनन करेंगे, इस थ्रोन के विषय में। ये मोबाइल कोर्ट रूम है। गॉड कैन एस्टैब्लिश दिस कोर्ट रूम एनीवेयर इन द यूनिवर्स। इज़िकियल सॉ द विजन कि व्हील्स हैं, व्हील्स के अंदर आंखें ही आंखें हैं और लिविंग क्रीचर हैं 4 जो व्हील को लेके चलते हैं, और उसके ऊपर एक फ्लोर है, ऑसम फ्लोर, और वो पूरा यूनिवर्स कवर कर रहा है ये थ्रोन। ये जुडिशियल कोर्ट रूम है यहोवा का, मोबाइल कोर्ट रूम। और लिखा है ए रिवर ऑफ फायर वॉज फ्लोइंग कमिंग आउट ऑफ बिफोर हिम। ये रिवर है एक आग का, ये पवित्र आत्मा का दरिया है। Thousands upon thousands attended him. Thousands into thousands. I mean numerous angelic being. बहुत से स्वर्गदूत वहाँ पे खड़े हैं। 10,000 times 10,000 stood before him. कुछ उसकी टहल में लगे हैं, हजारों करोड़ों लोग, और ये स्वर्गदूत हैं, और हजारों लाखों स्वर्गदूत उसके आगे खड़े हैं। ये अलग अलग तरह के स्वर्गदूत हैं। वचन को पढ़ के देखें, ओफनीम अलग हैं, लिविंग क्रीचर जोए अलग हैं, और व्हील इनटू व्हील्स वाले क्रीचर अलग हैं और सरफीम अलग हैं, चरबीम या करूबीम अलग हैं, आर्कएंजल अलग हैं, पावर्स अलग हैं, प्रिंसिपैलिटीज अलग हैं, अथॉरिटीज अलग हैं, डोमिनियंस अलग हैं, एंजल्स अलग हैं। ये सब अलग अलग तरह के, अलग अलग रैंक के रेल्म हैं, डिमेंशंस हैं एंजेलिक बीइंग की जो यहोवा ने बनाई है। और क्या लिखा है? द कोर्ट वॉज सीटेड। अदालत लग रही है। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि इस समय कोर्ट रूम चल रहा है हेवन में, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी की कौमें, पृथ्वी के मुल्क, पृथ्वी के राष्ट्र
उनकी बुक्स देख रहे हैं, एंजल्स आर इन्वॉल्व्ड, और जजमेंट या ब्लेसिंग ये डिटर्मिन हो रहा है हेवनली रेल्म में। तो लिखा है द कोर्ट वॉज सीटेड एंड द बुक्स वर ओपन। मैंने कल आपको बताया था कि आपकी किताब बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ पिटीशन दायर की है। कल मैंने आपको बताया उसका नाम कता अगोरा है। हालेलुया। किसका नाम? स्लैंडरर, जो आप पे दोष लगाता है, एक्यूजर ऑफ द ब्रदरन। हिज नेम इज कता अगोरा। अगोरा का मैंने आपको मतलब बताया था, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका परिवार, आपके जीवन के विजन, ड्रीम, ख्वाब, हर चीज जो जिसके ऊपर ब्लेसिंग मार्क की यहोवा ने, वो उसके विरोध में खड़ा है और यहोवा के सिंहासन के सन्मुख जाके आप पे दोष लगाता है और आपके खिलाफ मुकदमा करता है। और मैंने कल आपको बताया जकरिया नबी की पुस्तक में से जकरिया को क्या किया उसने। मैं चाहता हूँ फिर से एक बार हम वहाँ पे मनन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक निकालिए जल्दी से, जकराया, प्रॉफिट जकराया, और उसका 3 अध्याय में आ जाइए जो कल हम मनन कर रहे थे। जकरिया नबी 3 अध्याय में पढ़ता हूँ आपके लिए। देन ही शोड मी जाशुआ द हाई प्रीस्ट स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड सेटन स्टैंडिंग एट हिज राइट साइड टू अक्यूज हिम। कौन खड़ा है? यहोशुआ हाई प्रीस्ट खड़ा है। मैंने कल आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट क्या है। यरूशलेम की टेंपल बनाई जा रही है, शहरपनाह बन रही है, और यरूशलेम की टेंपल में दोबारा से परमेश्वर के लिए कुर्बानियाँ शुरू होने वाली हैं। याजकों को एजरा शुद्ध कर रहा है। जो मिक्स्ड ब्लड के याजक हैं उनको निकाला जा रहा है। जिन्होंने अन्य जाति की स्त्रियों से शादी की उन्हें निकाला जा रहा है, ताकि परमेश्वर की होली सीड को मेंटेन किया जाए। और सेटन ने स्वर्गीय कोर्ट रूम में मुकदमा डाला है, और क्योंकि हेवनली कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए पृथ्वी पे नेहमाया को और जरूबाबिल को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दुश्मन आ रहे हैं सीरिया से, सनबलाट, पॉलिटिकल पावर्स उनके विरोध में खड़ी हैं, और उनके बीच में से ही भाई लोग परमेश्वर के भवन को बनाने, शहरपनाह को बनाने का विरोध कर रहे हैं। अपोजिशन इज फ्रॉम विद इन एंड अपोजिशन इज फ्रॉम द आउटसाइड। Why this opposition is manifesting? Because there is a court case going on in the heavenly realm. आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, बिजनेस, कारोबार आपके बर्बाद होते हैं। कई बार बहुत सी समस्याओं में आप फंसते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपके विरुद्ध में शैतान ने हेवनली कोर्ट रूम में केस दायर किया हुआ है और आपके विरोध में प्रोसीडिंग चल रही है। इसलिए फिजिकल दुनिया में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं। फिजिकल दुनिया में चीज़ें तब मैनिफेस्ट करती हैं जब हेवनली दुनिया में हलचल होती है। अब ये जो पृथ्वी पे प्लेग चल रही है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द हेवनली रेल्म। हेवनली रेल्म में कुछ घट रहा है। और यहाँ पे लिखा है वो दोष लगाने वाला कहाँ खड़ा है? राइट हैंड पे खड़ा है। अब मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। जब यहोशू को शैतान ने सम्मन किया है हेवनली कोर्ट में, तब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गया था। अब प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित बन के क्रूस पे रक्त बहा के, अपना पवित्र रक्त लेके पिता की हजूरी में जाके मर्सी सीट पे उंडेल के पूरी दुनिया की मुक्ति का सोर्स बन गया है। हमारा सबका हाई प्रीस्ट है यीशु मसीह। और कहाँ बैठा है यीशु मसीह? राइट हैंड ऑफ द फादर। इब्रानिया 1:3 पढ़ें, हमारे पापों को अपने लहू से धोके वो परम प्रधान के दाहिने ओर जा बैठा। अब कौन है राइट हैंड पे स्वर्ग में? जीसस ऑफ नाज़रेथ। लेकिन यहाँ पे जकरिया 3 अध्याय के पहले वचन में राइट हैंड पे कौन खड़ा है? कत्ता अगोरा, दोष लगाने वाला, एक्यूजर ऑफ द ब्रदरन। लेकिन अब वो जगह जाके हेवन में किसने ली है? आपके और मेरे वकील ने ली है। मैंने कल आपको बताया, यूहन्ना लिखता है कि हमारा एक वकील है हेवन में, बैरिस्टर है, सोलिसिटर है, आपका एक पर्सनल लॉयर है हेवन में। मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कलाम में से जो आपको डिफेंड करती हैं। आज शाम को उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है
Then the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह यहोवा कहता है, हे शैतान, पिता यहोवा तुझे डांटे। यहाँ पे देखिए पिता भी और पुत्र भी हैं, दो यहोवा हैं। हालेलुया। Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. इसके गंदे वस्त्र उतार दो। हालेलुया। Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin and I have put fine garment on you. मैंने तेरे पाप को, तेरी बदकारी को धो दिया। I have cleansed you. I have taken away your iniquity. And behold, I am giving you a new garment to wear, new attire. Joshua the high priest was dressed in the priestly garment that God gave him. And this all is happening in the heavenly realm. और क्या लिखा है? और लिखा है, then I said, put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him, while the angel of the Lord stood by. The angel of the Lord gave this charge to Joshua. This is what the Lord Almighty says. If you walk in obedience to me and keep my requirement, then you will govern my house, and I have have charge of my courts. I will give you a place among these standing here. देखिए कितनी गहरी बात है। परमेश्वर अपने याजक को कह रहा है, अगर तू मेरी आज्ञा माने और मेरे मार्गों में चले, क्योंकि ये हाई प्रीस्ट है, पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रभु कहता है मैं तुझे इस कोर्ट में आने का हुक्म दूंगा। शरीर में रहते हुए, आप शरीर में हैं, पृथ्वी पे प्रभु के दास हैं। प्रभु यहोवा आपको स्वर्गीय कोर्ट में आके परमेश्वर के लोगों को डिफेंड करने के लिए, उनके मुकदमा लड़ने के लिए स्वर्ग में बुलाएगा। आप होंगे पृथ्वी पे, पर स्पिरिट में आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको मालूम, वचन बताता आप शाही याजकों की मंडली हो, आप किंगली प्रीस्टहुड हो, यू आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स। आपको मालूम सबसे बड़ी उपाधि क्या है? प्रीस्टली एनॉइंटिंग। आप याजक हो और आपको यहोवा स्वर्गीय अदालतों में आने का निमंत्रण देता है, अगर आपके वस्त्र साफ रहें, नई टर्बन हो, नई ड्रेस हो, यीशु मसीह के लहू की धार्मिकता की, तब आपको प्रभु कहता है मैं तुझे हेवनली कोर्ट में, आई विल मेक यू अ चांसलर, आई विल कॉज यू असेंड इन द हेवनली कोर्ट। सी हाउ ग्रेशियस गॉड इज। ही इज लुकिंग फॉर men and women from the earth who will participate in the judiciary system in heaven. God wants your participation. God wants me to engage in his heavenly counsels so that we give our input to the Father. You see how gracious and how deep is the love of the Father? He is looking for someone. वचन में लिखा है इज़िकियल 22 के 30 वर्स में, प्रभु कहता है I looked from heaven just for one man who will stand in the gap and who will intercede, but I found none. एक व्यक्ति को मैंने ढूंढा स्वर्ग से, just one man or one woman who will dare to stand in the gap and intercede. आपको मालूम सबसे बड़ी सेवकाई कौन सी है? सबसे बड़ी सेवकाई प्रॉफिट की, अपोस्टल की, पास्टर की, टीचर की, इवेंजलिस्ट की नहीं है। सबसे बड़ी सेवकाई है जो गैप में खड़े होकर इंटरसीड करते हैं, जो किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज होंगे परमेश्वर के, जो कभी स्टेज पे नहीं आए, जिनको लोगों ने पापा डैडी नहीं कहा, कभी बड़ी वाहवाही नहीं की जिनकी, शायद वो किसी को मालूम ही नहीं था उनके विषय में। अनसंग हीरोज, वो पर्दे के पीछे रहे, शायद पहाड़ों में, जंगलों में, अपने घरों में। उन्होंने कभी चाहा नहीं कि वो लाइमलाइट में आए, पर वो प्रार्थना करते थे, परसिस्टेंटली इंटरसीड करते थे। उनकी प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर देशों देशों पे अपना दंड नहीं लाया। देशों देशों के अंदर कलीसियाएं स्थापित की यहोवा ने उनकी प्रार्थनाओं के कारण। उनकी प्रार्थनाओं के कारण कई सेवकों को खड़ा किया, कई प्रॉफिट को, कई अपोस्टल को, कई लोगों को इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज दी उसने, कईयों की सेवकाई में उसने अद्भुत चिन्ह और निशान पैदा किए, मिरेकल, साइंस और वंडर्स किए, क्योंकि कुछ फेथफुल लोग गैप में खड़ा होकर प्रार्थना करते थे।
सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ये है। आपको मालूम पिछले 2000 साल से यीशु मसीह कौन सी सेवकाई कर रहा है? पिता के दाहिने ओर बैठा है और महायाजक की सेवा कर रहा है। मैंने आपको बताया यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय के पहले वचन में राइट हैंड साइड पे कौन खड़ा है? हसतान, शैतान खड़ा है। लेकिन अब राइट हैंड पे कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। अब राइट हैंड पे वो खड़ा होकर आपको दोष नहीं लगाता, क्योंकि आपका एक वकील पहुंच चुका वहां पे, आपका लीगल डिफेंस है हेवन में। लेकिन आपको मैंने कल बताया था, यू मस्ट वॉक अंडर द ब्लड ऑफ जीसस। You must not cause any breach to the covering of the blood. If you cause a breach in the covering of the blood, then the enemy will make an invasion and he will screw up your life in a big way. You must walk in righteousness, in purity and in holiness. You must hold up the law of God in your heart. And you must stay covered in the canopy of the blood of Jesus. Then the angelic host will not be withdrawn. The angel of the Lord will encamp around you. The angel of the Lord will encamp. There will be an encampment of the angelic host, and Satan will not be able to cause a breach. Devil can't barge in your life because the angelic host is protecting you as long as you are walking under the blood. जब तक आप लहू के नीचे हैं, जब तक आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, आपके अंदर पाप नहीं घुसा है, आपको छू नहीं पाएगा वो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्या करता है? डिफेंड करता है। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु चाहता है पृथ्वी से लोग हेवन में जाया करें, हेवनली कोर्ट रूम में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ एंगेज हों, अपनी इनपुट दें, ताकि पृथ्वी के लोगों की प्रार्थनाएं हेवनली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें। ये चाहता है परमेश्वर। लेकिन कोई मिल नहीं रहा जो गैप में खड़ा हो। यीशु मसीह की सबसे बड़ी सेवकाई अब चल रही है महायाजक की। ही इज योर हाई प्रीस्ट, बट ही इज नॉट योर हाई प्रीस्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एरन। ही इज योर हाई प्रीस्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक, मेल्कीजेदेक या मेल्कीजेदेक, and his priesthood is eternal. Hallelujah. आप भी उसी lineage से हो। You haven't received priesthood after the lineage of Aaron, but you received it after the order of Melchizedek, so that you can go up, ascend in heaven and pray in the heavenly courts. तो मैंने आपको बताया डैनियल की पुस्तक 7 अध्याय के 9, 10, 11 वचन में वहां लिखा था बुक्स वर ओपन। क्या हुआ? बुक्स वर ओपन। मैंने आपको बताया आपके जीवन की बुक बंद रहती है। क्यों? क्योंकि शैतान आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, पिटीशन फाइल करता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने नहीं देता। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोर्ट रूम में है। आज मैं आपको कुछ इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। हम शाम को भी इसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि हमें परहैप्स वील हैव टू हैव 10-15 सेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन ओनली वील बी एबल टू जस्ट ग्रैस्प अ लिटिल बिट ऑफ द रियलिटीज ऑफ द कोर्ट रूम्स इन हेवन एंड हाउ God executes his decisions upon the earth concerning nations, concerning ethnic groups, concerning governments, concerning churches, concerning families and concerning individuals. सब मेरे साथ मिलके निकालिए यशाया नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 29 चैप्टर, आइज़ाया 29, यशाया नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय निकालें और मैं चाहता हूँ आप पढ़ें उसका 9th and 10th, 9 और 10 वचन पढ़ें। यशाया 29 का 9 और 10। देखिए क्या कहता है प्रभु यहाँ पे। प्रभु कहता है, बी स्टन्ड एंड अमेज्ड, ब्लाइंड योरसेल्व्स एंड बी साइटलेस, बी ड्रंक बट नॉट फ्रॉम वाइन, स्टैगर बट नॉट फ्रॉम बियर, द लॉर्ड हैज brought over you a deep sleep. He has sealed your eyes, the prophets, and he has covered your heads, the seers. क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु क्या कहता है?
प्रभु कहता है, बी स्टंड, हैरान हो जाओ, आश्चर्यचकित हो जाओ, अपने आप को अंधा कर लो ताकि तुम्हें दिखाई न दे, और मतवाले हो जाओ लेकिन मदिरा से नहीं, और डोलते फिरो लेकिन इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक से नहीं. द लॉर्ड हैज ब्रॉट ओवर यू ए डीप स्लीप. इट इज द लॉर्ड गॉड who has caused a deep stupor on you. A deep supernatural slumber is fallen upon you. He has sealed your eyes. God sealed the eyes. Who are the eyes? The eyes of Israel were the prophets. They could look into the future and they could forewarn the people of Israel. But God just closed the eyes so that the prophets could not discern the time and the seasons, and they could not make a proclamation. They could not connect to the season of God. He says it is the Lord who did it. And what it says, the Lord has brought over you a deep sleep. He has sealed your eyes. He has sealed the eyes. He has sealed your eyes. The prophets, He has covered your head. He has covered your head. Who are the heads? The seers. Seers are the ones who had divine ability to look into the realm of the Spirit. They could look into the realm of the Spirit. They could envision spirit reality very clearly. But God is saying, I made your prophets and your seers of no use to you. They could not forewarn you. They could not get a word. Don't we see the same situation? Amos 3:7 says, God promises that He will do nothing except He foretells through the prophets. But don't you see that God never found Himself obligated to do this? क्योंकि झूठे नबियों का बोलबाला है. False prophets are selling prophecies for filthy lucre. परमेश्वर ने नबियों को नहीं बताया कि क्या होने वाला है. और क्या कहता है प्रभु यहां पे? For you this whole vision is nothing but words sealed in a scroll. पढ़ें इसका 11 वचन. प्रभु कहता है ये किताब को मुहर लगा के बंद कर दिया गया है. मैं आपको बताऊंगा, आपकी एक किताब है हेवन में, आप सबकी, हम सबकी एक एक बुक है. उसमें हमारी पूरी लाइफ लिखी गई है. हमारे सृजे जाने से पहले यहोवा परमेश्वर ने उस बुक को लिखा. वो दैट इज कॉल्ड द बुक ऑफ अ डेस्टिनी. Many years ago, I saw a glorious vision. I saw just one side. It wasn't a very clear vision, just a blurry vision. I saw a magnificent side of heaven, and it was a huge library. I can't even describe. Lofty, massive mansion loaded with books. And I saw the light beings roaming around, and they were arranging books, and there were few who were writing in books. आप सबकी, मेरी, हम सबकी एक किताब है. हर कलीसिया की एक किताब है. हर देश की एक किताब है. हर जाति की एक किताब है. सब कुछ पहले लिखा हुआ है उसमें. हम मनन करेंगे. I'll teach you on different books in heaven and what is written in those books in heaven and how the books are closed and how the books get opened. Here God is saying, I have closed your book. आपको मालूम जज क्या कहता है? जज देखता है, दोनों तरफ का सुनता है, और जज को लगता है कि अभी सच्चाई सामने नहीं आई, अभी पूरी तरह दोनों पार्टीज ने सच नहीं बका है, दोनों झूठ बोल रहे हैं दोनों के वकील. तो जज क्या कहता है? द कोर्ट इज अडजर्न्ड टिल 15th of December 2021. और किताब को क्या किया जाता है? बंद करके ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है. पृथ्वी के कोर्ट रूम में ऐसा होता है, हेवनली कोर्ट रूम में भी ऐसा होता है. Judge says the court is adjourned. Here the Lord is saying, for you this whole vision is nothing but the words sealed in a scroll. This is a book that is closed. God is saying this book has been closed. And आगे क्या लिखा है? And if you give the scroll to someone who can read,
and say, read this please, they will answer, I can't, it's sealed. अगर किसी पढ़े लिखे को दोगे ये किताब और उसे कहोगे ये किताब पढ़ दे, तो पढ़ा लिखा बोलेगा मैं नहीं पढ़ सकता, ये किताब तो मोहरें लगा के बंद की गई है। अगर आप किसी ऐसे को दोगे जो अनपढ़ है कि ये किताब पढ़ दे, तो वो भी यही बोलेगा कि आई डोंट नो हाउ टू रीड, मैं नहीं जानता मैं कैसे पढ़ूँ। ये किताब बंद क्यों हुई है? बहुत सारे लोगों की आपकी किताब बंद पड़ी है वहाँ पे। यू आर नॉट गेटिंग आंसर्स टू योर प्रेयर्स बिकॉज योर बुक इज ऑलरेडी क्लोज्ड। व्हाट एक्चुअली क्लोजेज द बुक? क्या है जो बुक को क्लोज कर देता है? बताइए मुझे। पढ़ेंगे हम इसी को, इसी वचन में इसका आपको जवाब मिलेगा। आपके जीवन की किताबें, स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर जब विमर्श करता है यहोवा और प्रार्थनाओं का उत्तर भेजने लगता है, अचानक आपकी किताबें बंद कर दी जाती हैं। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। पढ़िए इसी पुस्तक में, यशाया 29 में, यशाया 29 इसका 13 वचन पढ़ें। पढ़िए आप आइज़ाया 29 वर्स नंबर 13। क्या कहता है प्रभु? द लॉर्ड सेज, दीज पीपल कम नियर टू मी विद देयर माउथ एंड दे ऑनर विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स आर फार फ्रॉम मी। लोग यहोवा परमेश्वर को झूठी आराधना प्रस्तुत करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, बहुत म्यूज़िक चलता है ज़बरदस्त, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं चर्च के अंदर, पूरा आराधना ताबड़तोड़ हो रही है। हमारे इधर तो बहुत अब चलता है ये ट्रेंड, म्यूजिशियन बड़े तगड़े तगड़े, इधर लड़कियां होती हैं एक ड्रेस पहनी, इधर लड़के होते हैं एक ड्रेस पहने, ऐसे झूम झूम के आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम गाते हो, बजाते हो, होठों से, इधर कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनलिज्म है। तुमने आराधना को कमर्शियलाइज कर दिया। कमालू विषय में कहाँ कहाँ कमर्शियलाइजेशन हुआ है? वो अभिषेक, अब वो एनोइंटिंग ही नहीं है। इट्स ऑल गॉट करप्टेड। हिलसॉन्ग गॉट करप्टेड नाउ। इट्स ऑल बिजनेस दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। प्रभु कहता है तुम आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, लेकिन क्या कहता है? ये वर्शिप मुझे ग्रहण योग्य नहीं है, फॉल्स वर्शिप है। It's just mechanical, monotonous, professional, just for the sake of doing it, kind of a, you have to put up a show business. Many churches want to hire professional musicians and singers. They stress a lot on worship. So worship, so many people are actually worshipping the worship. बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर जो वहाँ आराधना होती है ना, उसकी आराधना लोग कर रहे हैं, यहोवा की आराधना नहीं है। सारा रॉक, पॉप कल्चर सब कुछ बीच में घुस गया और सच्ची उपासना नहीं यहोवा की। लोग सोचते हैं बढ़िया महंगे इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया ज़बरदस्त गाने वाले, क्वायर, प्रोफेशनली ट्रेंड लोग आएंगे तो हम यहोवा की हुजूरी को नीचे उतार लेंगे। भैया ऐसे नहीं होता है। इट डजंट हैपन। यू कैन नॉट अट्रैक्ट द सेक्रेड प्रेजेंस ऑफ गॉड विद ऑल योर वर्ल्डली मटीरियल स्कैफोल्डिंग। यू नीड द फायर फ्रॉम हेवन। आग चाहिए स्वर्ग से आपको। हालेलुया। कॉन्सिक्रेटेड, डेडिकेटेड, पवित्र आत्मा से मसा किए, पवित्र और अलग किए गए म्यूजिशियन और सिंगर और वर्शिप लीडर ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। फॉल्स वर्शिप के कारण बुक बंद हुई है। सबसे बड़ा रीजन है देयर वर्शिप ऑफ मी इज बेस्ड ऑन मियरली ह्यूमन रूल्स दे हैव बीन टॉट। पढ़ लें आप। Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. This is verse number 13, 29th chapter of Isaiah. This is NIV version. पढ़िए आप। आराधना आराधना नहीं है, फॉल्स आराधना है। समझ रहे हैं आप? आज लोग डांस करते हैं, ये ऐसे वाली आराधना करा रहे लोग, जैसे कॉन्सर्ट होता है ना रॉक का। इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। समझ रहे हैं आप? कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, नॉट कीपिंग योर सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, डोंट बी एन आइलैंड, ऐसी काइंड ऑफ थ्योरीज आ रही हैं अमेरिका से और कई कंट्रीज से। एंड दे इक्लिप्स्ड गॉड्स प्योरिटी एंड होलीनेस। यू हैव बिकम सो मच सीकर सेंसिटिव दैट तुमने वाटर डाउन ही कर दिया मुकम्मल तौर पे सुसमाचार को। प्रभु कहता है देयर वर्शिप ऑफ मी इज बेस्ड ऑन मियरली ह्यूमन रूल्स दे हैव बीन टॉट, देयरफॉर वंस मोर आई विल अस्टाउंड दीज पीपल।
Hallelujah. Therefore, once more, I will astound these people with wonder upon wonder. The wisdom of the wise will perish. Their intelligence of the intelligent will vanish. Woe to those who go to great depths to hide their plans from the Lord, who do their work in darkness and think, who sees us? Who will know? Hallelujah. रेवलेशन 22 की 10 वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी से निकालें। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 10th वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रेवलेशन 22:10। Then he told me, do not seal up the words of the prophecy of this scroll. अब इस बुक को सील मत कर। यहां पे यहोवा ने बुक को सील कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आराधना ही आडंबर है। आराधना एक दिखावा है, एक मैकेनिकल सा शो करते हैं हर संडे को। बहुत कई चर्चेस के अंदर तो पूरा जैसे फॉग मशीन्स भी होती हैं, डिस्को टाइप लाइट्स होती हैं, पूरा दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। यू कैन गो ऑन कंप्रोमाइजिंग टू एनी एक्सटेंट, देयर इज नो लिमिट, एंड यू कैन से यू आर अ रेलेवेंट चर्च, you are a contextualized church, you are a church that is reaching people out. You can come up with many excuses, but Jesus says a tree is known by the fruit it bears. वृक्ष पहचाना जाता है जो फल उसने पैदा किए हैं। देखिए फल इन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अब गिर रहे हैं। पास्टर्स उन्होंने अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया। दे से डोंट स्पीक अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी and lesbians and transgender, don't speak against pedophilia, बोलो मत abortions और इन सब गंदी बात। गॉड सूडो लव की बात करते हैं ये लोग। प्रभु बुक को सील मत कर, क्योंकि समय, परमेश्वर के समय को लोग नहीं पहचानते। जो मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर के सीजन्स हैं। ने समझना है। आपको मालूम, यूहन्ना ने हेवन में उस बुक को देखा जो सील्ड थी अंदर से बाहर से, 7 सील्स थी। तो यूहन्ना क्या करने लगा? ही स्टार्टेड वीपिंग वेहेमेंटली बिफोर द लॉर्ड। वो जोर जोर से यहोवा परमेश्वर के आगे रोने लगा। जब इधर अंदर से टूटेगा ना हृदय और सच्ची आराधना उपासना निकलेगी, तब पुस्तक खुलेगी। आपकी ज़िंदगी की किताब तब खोलेगा यहोवा, जब अंदर से आपका जीवन तब्दील होगा। हालेलुया। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोर्ट रूम में। मैंने कल आपको बताया था 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार के 31-32 वर्स में यीशु मसीह कहते हैं, शमौन शमौन द सेटन डिजायर्ड यू, लिखा है कुछ ट्रांसलेशन में, द सेटन डिमेंडेड यू। मैंने कल आपको बताया दैट्स अ ग्रीक जुडिशियल ग्रीक वर्ड। सेटन पिटिशनड अगेंस्ट यू एंड टुक यू ऑन रिमांड। जैसे पुलिस रिमांड पे लेती है ना लोगों को मार के उनसे उगलवाने के लिए, ऐसे शैतान ने तुझे रिमांड पे लिया शमौन शमौन, ताकि तुझे, जैसे दानों को छटते हैं ना छज्ज में डाल के, इंडिया में पंजाब में पहले होता था, ताकि भूसा निकल जाए, ऐसे तुझे छटना चाहता था शैतान। शैतान यहोवा की नौकरी करता है, यहोवा उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है। हालेलुया। लोगों को ये समझ नहीं है वचन की। तो प्रभु कहता है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। ग्रीक वर्ड है डियोमाई। आई असेंडेड हेवन एंड आई पुट ए पिटिशन फॉर यू। आई पुट एन एप्लीकेशन बिफोर द फादर so that thing should be overruled, and God said overruled। वरना शैतान शमौन का भी वही हशर करता जो जूडस इस्करियोट का किया। हालेलुया, हालेलुया। कोर्ट रूम के अंदर कैसे हम जा सकते हैं? कोर्ट रूम के कौन कौन से नियम हैं? कौन कौन सा कोर्ट रूम है? हेवन में कौन कौन सी बुक्स हैं? शाम को मैं अलग अलग बुक्स के ऊपर हम मनन करेंगे।
और फिर हम सीखेंगे कि प्रार्थना कोर्ट रूम में कैसे करना है। वी विल कंटिन्यू ऑन दिस डिफरेंट सीरीज़ में हम इसके ऊपर मनन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो वचन मैं आपको देता हूँ उसके ऊपर फर्दर आप स्टडी करें, खुद ढूंढें कलाम को, हिब्रू ग्रीक वर्ड्स को आप जाके ढूंढ सकते हैं, उनका स्टडी करें ताकि आपकी लाइफ एनरिच हो और परमेश्वर के कलाम से भर जाए। तो वचन में लिखा है झूठी उपासना ने किताबें बंद की हैं और टाइमिंग नहीं पता लोगों को, इसलिए पुस्तक बंद है और लोग अंदर से प्रार्थना नहीं करते। यूहन्ना फूट फूट के रोने लगा तो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर आया किताब को खोलने के लिए। हालेलुया। अंदर से इंटरसेशन होगा भाई और बहनों, हृदय से। जब हृदय टूटेगा तब अंदर से सोता बह निकलेगा। शाम को हम मनन करेंगे हेवन के अंदर अलग अलग बुक्स कौन कौन सी हैं, क्या उनका मीनिंग है। विल स्टडी, आई विल गिव यू स्क्रिप्चर्स, वचन दूंगा आपको, आयतें आपने पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है। हालेलुया। और कोर्ट रूम के इस रेवलेशन से मुझे पूरी आशा है परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और प्लीज़ इन टीचिंग्स को शेयर करें दूसरों के साथ, अपने तक ना रखें इसे। मुझे यहोवा ने दिए ये भेद मैं आपसे बांट रहा हूँ, मैंने पूरे संसार में बांटे हैं, मैं अपने पास नहीं रखता। और सेंत मेंत में देता हूँ, सेंत मेंत में प्रभु ने मुझे दिया, सेंत मेंत में मैं बो देता हूँ। हालेलुया। सेंत मेंत में। लेकिन अगर आपसे प्रभु बात करे कि आप प्रभु के लिए कुछ बोना चाहते हैं, देना चाहते हैं ताकि सहायता की जाए लोगों की, प्रभु के काम में और लगाया जाए, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अनुमति देता हूँ, पवित्र आत्मा से पूछें। मैं टू गेट मनी आउट ऑफ द पॉकेट्स ऑफ पीपल वी विल नॉट प्ले एनी गिमिक एंड ट्विस्ट स्क्रिप्चर्स, दैट वुड बी विचक्राफ्ट एंड द लॉर्ड इज सोरली डिस्प्लीज्ड बिकॉज मैनी हैव डन दिस विचक्राफ्ट। God's spirit is really vexed. But I give you an opportunity, should the Spirit of the Lord speak to you and you would like to sow, plant a seed, please do so. आप मुझे मैसेज कर दें, बता दें, you can do that. Hallelujah. परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। शाम को we'll talk about different books, book on which your name is written in heaven. Bobby Art name is written on a book. Priyanka Christian name is written on a book. Johan Johal name is written on a book. Sabi Surjeet name is written on a book. Vinod Kumar name is written on a book. There are different books in heaven. Raman Khan is written. Pastor Sam is written. Malkiyat Gill is written. Sunita Kaur is written on particular book. Ravi Kantoria is written on that book. There are books. Harjinder Pal is written on that book. Hallelujah. Pavan Virk is written on that book. Nishan Bidu is written on that book. Jan Love Helgeson is written on that particular book. There are books by your name in heaven. आपकी लाइफ की डेस्टिनी की किताब लिखी गई है। भाई दविंदर सिंह एक बुक के ऊपर लिखा गया है। उन किताबों को हम वचन में से ढूंढेंगे आज शाम को और हम सीखेंगे टू प्रे दिस प्रेयर that is concealed in the word of God. Hallelujah. आइए हम सब प्रार्थना करें। Father, teach us to pray. Father, teach us to pray. Yahushua, teach us to pray. We know not how to pray, Yahushua. Teach us to pray. Yahushua, teach my brothers and sisters how to pray. Teach us, Lord, the deep, profound things that pertain to prayer. Father, as we breathe so naturally, inhale and exhale so naturally, may this become a prayer life. May a prayer life become the life of prayer. Touch us in such a way, Father, that there is no show business, that there is no facade, but real communication, heart-to-heart communication with you. Teach us, give us that wisdom from heaven. We learn from you, Yahushua HaMashiach, how we pray. Thank you for the blessed Holy Spirit. Holy Spirit, may you take complete charge of our lives. Hallelujah. And give us the wisdom that is hidden and buried in the precious word of God. Holy Spirit, unleash angels around your people these days.
Bless each and every one. As we will gather this evening, 6, Father, I pray that your Spirit will continue to teach us, stir up our hearts, and Father, this revelation will sink deep down inside of us. And Father, the precious anointing of Daniel, the anointing of Job, the anointing of Jeremiah, Father, the anointing of Samuel, Ezekiel will come upon us to pray. The anointing of King David, precious anointing of Elijah, who was just like us. He prayed, it did not rain for 3.5 years. Then he prayed again and it did rain. Father, teach us, Lord, how our King Yahushua HaMashiach prayed. Give us those keys, those deep things, Father. Father, we know that all these things cannot be taught, but surely they can be caught. So enable us to catch these things in the realm of the Spirit. We bless you, Father. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. जैसे हम कोर्ट रूम के ऊपर सीखते जाएंगे, फिर हम एक दिन कोर्ट रूम के अंदर प्रार्थना करेंगे सभी लोग बैठ के. आप जहाँ जहाँ होंगे मैं बताऊंगा आपको, सब बैठना आपके फैमिलीज़ के साथ. हम प्रभु भोज लेंगे उस दिन और कोर्ट रूम में जाके प्रार्थना करेंगे. यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड मूव. हालेलुया. शाम को 6 PM. प्लीज़ किसी और को, एक को कम से कम और बताइए, उनको भेजिए. मेरी फेसबुक में मैं अपने पुराने कुछ लोग निकाल के उनकी रिक्वेस्ट ले लूँगा जो नए लोग आना चाहते हैं, ताकि वो वचन सीखें. प्लीज़ डू दैट. दूसरे लोगों को आशीष पाने दीजिए. अपनी कलीसिया के लोगों को बताइए ताकि वो बरकत पाएँ. हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन. 6 बजे मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में.